The floor is open for questions. Please raise your hands, whoever wants to ask questions. The gentleman in the green shirt in the front row. Yeah, please give him the mic. Yeah. सर सर दैनिक भास्कर से हूं मैं, मुकेश कौशिक। मेरा सवाल गुजरात में सूरत में एक कैंडिडेट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने जाने के बारे में है। सर 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटा इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया था, तो एक लाइन मैं उसकी पढ़ देता हूं आपके लिए। इट इज एसेंशियल दैट पीपल ऑफ हाई मोरल एंड एथिकल वैल्यूज आर चोजन एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव for proper governance of the country, and nota button can compel political parties to nominate a sound candidate. My question is, sir, by declaring a candidate unopposed, whether you have not violated the spirit and soul of the judgment of the Supreme Court, and if you agree with it, would you consider amending the process and declare that henceforth no candidate will be declared unopposed since nota is there? Yeah, we'll take a few more questions. The gentleman next to you in the white shirt. Yeah. सर नमस्कार सर, मैं अरविंद हूं, मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से हूं। सर मेरा सवाल है कि आपने चुनाव में बहुत सारी हिंसा को रोकी, आपने मनी पावर का इस्तेमाल को रोका, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं कि आपके ऊपर जो इतने सारे हमले हुए हैं, आप पे बहुत सारे आरोप लगे हैं, आप कहीं उसको नहीं रोक पाए? Yeah, thank you. Who's that? The lady in the third row in the end. Yeah, please, yeah. Hello, sir. Am I audible? Sir, I have actually two questions. One is a bit regional, and number one is nationwide question. Sir, as you say that the opposition bloc, they have raised some issues yesterday, but you have probably somehow missed the postal ballot question, because they have raised one question which was said by them, what about the postal ballot and what decisions has been taken regarding the counting of postal ballots? And number two, which is more specific to West Bengal, because you have mentioned the violence were a challenge to curb in West Bengal. So what are your plans to, for the counting day and post-poll situation for specifically West Bengal? Thank you, sir. No, just hold on. Please don't pass on the mic. The lady here in black on the fourth row. Yeah, here. Just please stand up. The mic will come to you. Yeah. Hello, sir. Aishwarya Paliwal from India Today and Aaj Tak. Sir, regarding J&K elections, because a lot of people are still asking questions, होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, अभी तक क्यों नहीं हुए? The fifth question. Bharti Jain there, Times of India, the lady in white over there. Yeah, the middle row. In view of the various attacks that were made at EC and doubts raised through the poll process, do you think the EC could have done something differently? What are the challenges you faced and what are the lessons you learned from these polls? Let me take these questions first. पहला प्रश्न लेता हूं मैं आपका सूरत में निर्विरोध चुनाव का। एक जगह में और इसी की प्रक्रिया चली इंदौर में, उसके बाद देखिए जो लेजिस्लेटिव स्कीम है वो एब्सोल्युटली क्लियर है। पहला तो अपफ्रंट अगर आप एक फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल आंसर चाहेंगे, जैसे आपने माननीय न्यायालय का आदेश पढ़ा, तो हमारी कोशिश और सोच यही है कि हर जगह में कंटेस्ट होना चाहिए। नंबर वन, एब्सोल्यूट नो डाउट अबाउट इट। कंटेस्ट होके जो जीतने में प्रतिष्ठा है वो ऐसे नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन होने के बाद विड्रॉल के डेट में अगर कैंडिडेट्स बाकी विड्रॉ करने का डिसीजन लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लेट अस सी दैट। उनके ऊपर में कोई दबाव है, उनको पकड़ के बंद किया गया है, उनसे जबरदस्ती कराया गया है, तो हमारा रूल आता है। अगर वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, इफ इट वाज ए गेमिंग लाइक दैट, हाउ वुड आई नो दिस? देयरफॉर
अगर आप ये सोचें कि जहां एक ही कैंडिडेट रह जाएंगे उसके अतिरिक्त इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कानून बना दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि विधि सम्मत होगा। लेकिन हर आरओ को और हर जगह में ये ध्यान रखना मस्ट है कि किसी को भी फोर्सफुली हटाया ना जाए। दैट्स व्हाट कैन बी डन। आपने बंगाल के बारे में और जगह में प्लान्स फॉर पोस्ट पोल वायलेंस पूछा। हम बहुत आशावान हैं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट बाई सीइंग व्हाट हैज हैपेंड इन 7 phases इन वेस्ट बंगाल। हर जगह में पूरी कंट्री में लोग अब हिंसा के नाम से त्रस्त हैं और हम ये अपील भी करते हैं सबसे कि जिस तरीके से डिफरेंट टफ इलाकों में लोगों ने बैलेट से बुलेट के ऊपर जीत का आगाज किया है, वो चालू रहना चाहिए। तो हम नहीं समझते पोस्ट पोल वायलेंस होगी, लेकिन अगर होती है तो हमने कुछ स्टेट्स में पहली बार एमसीसी के बाद भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगे, ऐसा निर्णय लिया है, जिसमें आंध्रा भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, मणिपुर भी है। जहां जहां हमें संभावना है तो बंगाल में भी पर्याप्त मात्रा में पोस्ट पोल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी। हालांकि वो राज्य सरकार के अधीन रहेंगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है, और हमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकार और ये इन पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से पोस्ट पोल वायलेंस को रोकने में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो तैयार रहेंगे और कोशिश करके उसको रोकेंगे भी। जे&के में आपने पूछा, मैं 2 बार बता चुका हूं, जे&के की जो स्टोरी है वो एक बहुत ही आशा देने वाली स्टोरी है। LWE एरियाज की, मणिपुर की, इन सब जगहों की जो एक ये दिखाती है कि लोग कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके आगे आना चाहते हैं। आई विश दीज लॉन्ग क्यूज, वो मैंने एक फोटो दिखाया था बच्ची का, वो जो आंखों में चमक थी वोट डालने के समय में, वो बरकरार रहे, लोग आपस में ना लड़ें, और जो उन्होंने इच्छा दिखाई है उसको हम बहुत जल्दी पूरा करें कि वो अपनी गवर्नेंस अपने हाथों में लेके अपने से चुन के कर सकें। वी विल वेरी सून स्टार्ट दैट प्रोसेस of assembly elections in J&K. We are very enthused. It is one of our most satisfying moment for all of us, for the entire nation, and especially for us in the commission, that we could kind of ensure this, and we will start that process very soon. आपने पूछा पोस्टल बैलेट के बारे में कि हमने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए, पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A, which was introduced in 1964 in the act. उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, PWDs नहीं थे, ETPBS भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की। सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है। हम वी आर ट्राइंग, हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। So on all centers in the country, it will start first. No doubt about it. After only half an hour would start the EVM counting. So there are 3 countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में
पोस्टल बैलेट की संख्या कम है तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। 2 प्रश्न पूछे आप लोगों ने कि हम आरोपों को नहीं रोक पाए। किसने पूछा था? आरोपों को नहीं रोक पाए, आपने पूछा था। और एक और प्रश्न पूछा था कि जो अटैक्स और चैलेंजेस हमारे ऊपर हुए उनको भी हम कुछ नहीं कर पाए। मैं सोचता हूं कि इस बात का जवाब देना तो चाहिए। 2 स्लाइड दिखाता हूं आपको, क्यों नहीं रोक पाए। मैंने 4 M की बात की थी आपसे। एक छुपा हुआ 5वां M भी था जो मुझे पता नहीं था। मिस्चीवियस नैरेटिव्स का एक 5वां M था जिसको हम वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड। हम अपनी गलती मानते हैं। हमने फेक न्यूज, फेक नैरेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चलेंगे, उनको लड़ाएंगे, किसी की पिक्चर किसी से लगाएंगे, ये सोचा था। उसको रोक दिया। हिंसा रोक दी, मनी रोक दी, मिस इन्फॉर्मेशन वहां रोक दी, एमसीसी भी बाय एंड लार्ज रोक दी। ये नहीं रोक, इसको पता ही नहीं था। तो आज पिक्चर दिखाता हूं आपको कि इसमें क्या था। एक पैटर्न था, सब बह गए उसमें और हम समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। इलेक्शन कराएं, ये जो जितने लोग जीप ले लेके और ईवीएम्स ले लेके जा रहे थे धूप में, उनको देखें या इससे लड़ें। क्या था पैटर्न? पहले एक केस आता है इलेक्शन शुरू होने से पहले कि वोटर लिस्ट खराब है। पैटर्न देखिए, कंट्री को देखना चाहिए ये पैटर्न। मैंने कहा था एक बार पहले भी 16 मार्च में कि झूठ का एक बाजार है, उसमें बड़े गुब्बारे हैं जो फटते हैं। मैंने बताया था एक बार, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारे ही सिर पे फट जाएंगे। ये नहीं पता था मुझे कैसे फटे, मैं बताता हूं। पहले वोटर लिस्ट आया, गलत है, गलत है, गलत है। केस चला बहुत लंबा, 15 दिन तक हमने इतना मोटा एक एफिडेविट बनाया, जवाब दिया। बाद में हुआ कि नहीं, सब ठीक है। बताइए ना हमें, जब अभी चुनाव नहीं हो रहा, जैसे कल से खत्म हो जाएगा, कि कहां की खराब है। कोई जगह की बताइए, हमें आके बताइए कि वहां की खराब है। 2-4% हो सकती है, 2-4-5 लोग गांव में हो सकते हैं, मैं दावा नहीं करता, पर 95-98% कहीं बताइए जहां गलती है। नहीं, उससे चुनाव से तुरंत पहले आया कि कुछ लग जाए चिंगारी तो शायद कुछ खेलने का मौका मिले। चलिए, चुनाव शुरू हो गए तो ईवीएम शुरू हो गया, फिर केस आ गया। ये कौन सा केस था? लेट अस सी दिस। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड ये क्या कर सकता था ये भी बताता हूं आपको, कैसे देश में एनार्की फैला सकता था ये। जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन इतना हैवी है, वर्कर चार्ज्ड है, पॉलिटिकल एजेंट्स जो वर्कर जा रहा है फील्ड में, कैंडिडेट्स, सब में एक प्रतिस्पर्धा है, एक भावना है। और उनको अगर ये पता लगे कि आपके साथ गड़बड़ हो सकती है तो वो देखिए क्या भावनाएं फैल सकती हैं, क्या आग लग सकती है। सो 2023 का एक केस था जो उस समय पड़ा हुआ था और हमारा रिप्लाई पड़ा हुआ था उसका उसी समय का, चुप। कब आया वो? पहली फेज से 4 दिन पहले। और 2019 में भी ऐसे ही आया था। एग्जैक्टली 2019 में फेज 1 के 4 दिन पहले आया था। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन उस समय भी हुआ था। तो भाई 19 से 24 के बीच में कभी और ले आते ना, उसको ठीक कर लेते हम लोग। देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन। आई एम नॉट सेइंग टूल किट, बट देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। दूसरा, एक अनदर केस था जो 2019 में पड़ा हुआ था, वोटर टर्नआउट पे। वो भी 2019 से पड़ा हुआ है। उसमें भी हमने जवाब 2022 में जुलाई में दे दिया था, अप्रैल में। इतना मोटा जवाब है, हर चीज का जवाब है उसमें। वो भी चुप था। आज मैं बोल रहा हूं इस बात को, आपने पूछा इसलिए, बोलना नहीं चाहता था। वो भी चुप था। क्या उसमें आरोप लगा? कि हमने वोटर टर्नआउट का डाटा नहीं दिया और 1 करोड़ से बढ़ा दिया। यही तो आरोप था। समझ ही नहीं पाए हम। देखिए, आपको दिखाता हूं कैसे ना हमने वोटर टर्नआउट देने में देर की और ना वोटर टर्नआउट का डाटा 1 नंबर से भी बढ़ सकता है। आई विल शो यू राइट नाउ। ये वोटर टर्नआउट ऐप आप सब लोग देखते होंगे, देखते हैं। हर दिन का जैसे आपको पता लगता है ऐसे हमें पता लगता है, बिकॉज ये 10 लाख बूथ से
इसकी एक पैटर्न है, ये नीचे बूथ से धीरे धीरे ऊपर उठता है, उठते अगले दिन शाम तक जाके जितने 17C का टोटल है वो हो जाता है। कोई जो वो मैं पार्टीज दिखा रहा था, कोई मिट्टी से निकल के आ रहा है, कोई कहीं से निकल के आ रहा है। एवरी मोमेंट देखिए, एक जो राइट साइड में दिखाया है, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, ये फेज 1 का एग्जाम्पल है। 78 पॉइंट, सब किसी भी स्टेट का चेक कर लीजिए, अभी भी नेट पर है, अभी भी हमारी वेबसाइट पे है। 78.26 वॉज सपोज असम। तो अब इधर आइए लास्ट बट 1 में, उसको पीसी में देख लीजिए, पीसी वाइज में भी वही है, पीसी के नीचे असेंबली वाइज वही है। असेंबली वाइज, पीसी वाइज, स्टेट वाइज डाटा वॉज ऑलवेज अवेलेबल एट एवरी मोमेंट। पहली फेज में सिर्फ क्या नहीं था, और ये चल रहा है पिछले 20-30 इलेक्शन से, ऐसे ही चल रहा है 2019 के बाद से। क्या नहीं था? जो पीसी और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई, अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी? तो माहौल क्या बना? 1 करोड़ वोटर बना दिए। तो कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए हैं। तो जो आपने हमसे लर्निंग पूछी, तो हमारी इसकी बार की 3 लर्निंग है, ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस विच वी वांट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेस लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। सेकंड, इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए, और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज और है, वो भी मैं आपको अपफ्रंट बताता हूं। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे, हमने सोचा था, उसके इंतजाम हमने कर लिए थे, नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंतजाम किए थे, बट हमने इंतजाम कर लिए थे, लेकिन अपने में ही हो गया। फिर आप कहेंगे कि फिर मैंने इस पर भी कुछ लिखा था, कहे तो मैं सुनाता हूं। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से ही, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हों। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहां डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई। तो बात करेंगे फिर आगे। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ, मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हों। गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये हो रहा है। थैंक यू। We'll take another round of questions, sir. Yeah. Okay, just the gentleman in the green shirt in the middle. The green shirt. Yeah. Please. Yeah. Please ask your question. कौन सी? लर्निंग, करेक्ट। सॉरी, 2 बताई ना मैंने। नहीं, 2 बताई। एक गर्मी में हमें पहले करना चाहिए, एक ये फॉल्स नैरेटिव को लड़ने के लिए वी शुड बी फार मोर प्रिपेयर्ड, और एक और लर्निंग है हमारी। क्या दोबारा बोलिए।
सब कुछ वोटर ऐप पे अवेलेबल था, एक्सेप्ट कि AC प्लस PC का जो डेटा था वो सबसे ऊपर नहीं दिख रहा था, तो इस पे भी सवाल उठेगा कि क्यों नहीं दिख रहा था? बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ आपको। अच्छा है आपने ये भी पूछ लिया। PC का पूरा डाटा परसेंटेज में दिख रहा था, AC का पूरा डाटा परसेंटेज में दिख रहा था। उनको टोटल, देखिए दो चीजें वहां पर, उनको टोटल करके स्टेट का नहीं दिख रहा था, सेकंड फेज से वो भी दिखना शुरू हो गया। इट वॉज फेज वाइज, इट वॉज नेवर थॉट वी देखिए पूरा चुनाव जो है वो असेंबली और पार्लियामेंट की एक व्यवस्था है, उस पर चलता है। उसका डाटा जो है वो सेक्रोसेंट है, बाकी सब डिस्क्लोजर्स हैं, वो स्टैट्यूटरी है। तो किसी भी कैंडिडेट के पास में हर समय में वो उपलब्ध था, हर समय में असेंबली वाइज, हर समय में PC वाइज उपलब्ध। आपको सबको मुझे रिसर्च के लिए ओवरऑल परसेंटेज रिपोर्ट करने के लिए नहीं दिख रही थी, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गायब हो गया। या प्लीज आस्क यू, स्विच ऑन योर माइक बॉस। सर मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। हमारा सवाल ये है कि जिस पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को क्या कोई प्रॉब्लम है उस रिजल्ट को, जो पोस्टल बैलेट का रिजल्ट है, इसमें कौन आगे कौन पीछे किससे कितने, क्या उसको डिक्लेयर करने में कोई परेशानी है? क्योंकि विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा है कि वो बाद में चुनाव आयोग पता नहीं क्या करता है, जिसमें कि पहले वो बताता नहीं है रिजल्ट कि पोस्टल बैलेट का रिजल्ट क्या आया, और बाद में। और थोड़ा धार्मिक प्रचार पे भी एक बार बताइए। या ऋषि फ्रॉम दूरदर्शन, या लास्ट उधर का, टुवर्ड्स द एंड ही इज देयर। वन मोर सर, जस्ट वन मोर। सर मैं ऋषि आस्क यू क्वेश्चन। हाँ सर, मैं ऋषि दूरदर्शन न्यूज से। सर आपने सीजर के बारे में जो डाटा दिया, सर सीजर के बारे में जो डाटा दिया 10,000 करोड़ का, ये अभूतपूर्व है। तो क्या आप मानते हैं कि हमारे लोकतंत्र में इन चीजों की जो वृद्धि हुई है, आपने कंट्रोल जरूर किया, लेकिन ये वृद्धि हो रही है, तो इसके कारण क्या है? क्या मतदाताओं को उसको जागरूक करने का प्रयास करेंगे? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.